السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اسلامی تعلیم یہ ہے کہ جب کوئی شخص اس دنیا سے چلا جائے تو اس کی یاد میں جو بھی اس کی اچھائیاں ہیں وہ کھول کر بیان کی جائیں۔ اس وقت آپ کے سامنے ہمارے ایک معروف ہستی مبارک صاحب، جو کہ 9 برادرز ٹی وی کے حوالے سے مشہور و معروف ہیں، ساری دنیا میں لوگ جانتے ہیں، وہ موجود ہیں۔ اور پھر ان کے ساتھ ایک دوست ہیں، وہ اپنا اگر تعارف کروا دیں، اپنا نام بتا دیں۔ اور میرا نام نصر اللہ احمد ہے جی اور میں میرٹھ میں رہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ میری بھتیجی کے شوہر تھے، ٹھیک ہے افتخار احمد جی۔ یہ ابھی جو ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے افتخار صاحب۔ میں افتخار صاحب کو کیونکہ پاکستان سے جانتا تھا، ان کو ہم بچپن سے مکھن کے نام سے، کیونکہ ماں باپ نا بعض پیار میں نام رکھتے ہیں بچوں کے، تو وہ ان کو ہم اس نام سے جانتے تھے۔ اور کافی عرصہ سے یہ ہمبرگ میں پہلے رہے اور پھر اس کے بعد یہ اوفنباخ آ گئے، اب یہ میولہائم میں تھے۔ تو 2 دن قبل اچانک اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے تحت وہ گھر میں ہی تھے، اسی جگہ پہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کا غالباً بتا رہے تھے دوست کہ نماز پڑھنی تھی، تو گھر میں کوئی نہیں تھا، تو اچانک ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ اس دنیا سے اپنے اللہ کے حضور حاضر ہو گئے۔ تو ان کی جو کوئی اچھی باتیں اس پہ ہم مبارک صاحب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ کیونکہ ان کے ساتھ ایک رشتہ داری تھی اور ان کا کافی تعلق تھا، آتے جاتے رہتے تھے۔ مبارک صاحب اگر آپ اپنے الفاظ میں کچھ۔ میں بتاتا ہوں کہ رشتہ داری تو بعد میں ہوئی، لیکن افتخار صاحب ہیمبرگ میں رہے۔ میرے چھوٹے بھائی وسیم صاحب، آپ کے بھی بھائی ہاں جی، افتخار یہ اکٹھے وہاں پہ رہتے تھے، تو وہاں سے بھی پہلی دفعہ وہاں پہ ملاقات ہوئی۔ اچھا اچھا اچھا۔ تو پھر یہ ہوا کہ ہیمبرگ جماعت سے میرا تعلق بھی تھا، تو وہاں جب بھی جانا تو یہ ماشاءاللہ کوئی نہ کوئی وہاں پہ خدمت کر رہے ہوتے تھے جماعت کی۔ اور میرا خیال کوئی سیکٹری تبلیغ تھے یا ناظم تبلیغ تھے، اب مجھے سیکٹری یاد نہیں۔ تبلیغ رہے ہیں جی، ہاں جی۔ اور وہاں ماشاءاللہ میں نے دیکھا کہ بڑے جوش کے ساتھ یہ جب بھی ملتے تو یہی ہوتا کہ کوئی نہ کوئی خدمت اس وقت چل رہی ہوتی تھی۔ اور دوسری بات کہ جب بھی ملاقات ہونی تو چہرے پہ مسکراہٹ، بڑی گرم جوشی کے ساتھ ملتے تھے۔ پھر میں بھی ہیمبرگ شفٹ ہوا، پہلے میں کچھ عرصہ شریف میں رہا تھا۔ اچھا اچھا۔ تو وہاں سے پھر یہ یہاں فرینکفرٹ آ گئے جب میں ہیمبرگ آیا ہوں۔ تو فرینکفرٹ میں جب میں نے 9 برادرز ٹی وی انٹرنیشنل شروع کیا تو تقریباً 2 سال پہلے اسی ہاؤس میں ہم نے کافی پروگرام کیے، اور بڑی میری مدد کی انہوں نے، اس میں بڑی ہیلپ کی۔ جو مجھے سب سے زیادہ چیز اچھی لگی کہ جو لوگ میرے ساتھ پروگرام کرنے آئے جی وہ مہمان تو میرے تھے جی جی، مگر میں اتنا بزی تھا تو میں ان کو ٹائم نہیں دے پا رہا تھا، تو یہ رات 11-12 بجے تک ان کے ساتھ باتیں کرتے رہے باہر گارڈن میں بیٹھ کے گرمیوں کے دن سے۔ اچھا اچھا تو بڑا اچھا لگا کہ ایک وقت اپنا یہ قیمتی دے رہے ہیں۔ پھر میں رابطے میں تو رہتے تھے، فون شون ہوتے ہی رہتے تھے، تو کہنے لگے جناب جب آپ کا چینل اتنا شروع میں نہیں چل رہا تھا تو آپ ادھر آ کے رہے ہمارے پاس، آپ کبھی فون بھی، ہم کبھی آتے نہیں ہیں، بڑے سٹار بن گئے۔ میں نہیں ایسی بات نہیں، تھوڑا بزی ہوں۔ یہ 2 ہفتے پہلے بات ہوئی اچھا اچھا اچھا، ٹیلی فون پہ نا۔ صحیح صحیح۔ تو مجھے کہنے لگے کہ آپ آئیں یہاں پہ، تو بڑا دل کر رہا ہے کہ ملاقات ہو آپ سے۔ پھر جو سب سے ایک اور چیز جس نے مجھے متاثر کیا کہ میں کل یہاں پہ آیا ہوں جی، تو آپ کے جو لوکل ایریے کے لوگ ہوتے ہیں نا، جی جی، ان سے آپ کا پتہ چلتا کہ آپ کے تعلقات کیسے ہیں، یہی بات ہے، کیونکہ رشتہ داری جو ہوتی ہے میرے عزیز ہیں، میں نے پتہ نہیں سال بعد ملنا ہے، 6 ماہ بعد ملنا بالکل ہے۔ صحیح۔ اچھا، کل سے کوئی 50 سے 100 لوگوں سے ملاقات ہوئی میری، اچھا اچھا، اور سب نے اتنی تعریف کی ہے نا ان کی کہ میں خود حیران کہ انہوں نے کہا کہ چاہے کوئی وہ انسانیت کا موقع ہو، چاہے وہ کوئی دین کی خدمت کا ہو، چاہے وہ کوئی ذاتی ہو، ہر جگہ پہ انہوں نے لوگوں کی مدد کی۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ جب اتنے لوکل لوگ جو ہیں وہ تعریف کر رہے ہیں، صحیح بات، تو ظاہر ہے کوئی خوبی ہے بندے میں۔ بالکل۔ پھر اس پہ کل 9 برادرز ٹی وی انٹرنیشنل پہ میں نے پروگرام کیا تھا، جی، وہ جو لوگ دنیا میں رہتے تھے مجھے میسج آئے ہیں آپ، اور انہوں نے بڑی تعریف کی کہ کوئی کہہ رہا میرے کلاس فیلو تھے، کوئی کہہ رہا میرے سے ملاقات بڑی دیر بعد ہوئی، ایسے ملے، کوئی کچھ اپنے لوگ تاثرات بیان کر رہے ہیں۔ تو
मकसद ये है कि देखिए मौत तो सब पे आनी बिल्कुल है, सही मगर मैं किसमें एक वाक़या शेयर कर देता, मैंने आज उनको सुनाया था जी। कि वालिद साहब की वफ़ात हुई 96 में। तो मैं उनको पहली दफ़ा पाकिस्तान में भी गया, तो मैं और मेरा भाई उनका जनाजा लेके पाकिस्तान गए तो हुआ। ठीक मूसी थे वालिद साहब, ठीक है मुश्ताक साहब उनका नाम था। जी। तो जब लाहौर एयरपोर्ट पे पहुंचे तो वहाँ पे मेरे पास वीडियो कैमरा था। ठीक अच्छा, अब मैं वो जैसे ही वहाँ से निकलने लगा तो कस्टम वाले ने रोक लिया। मैंने उसको बताया कि वालिद मोहतरम की वफ़ात हुई है, तो हम इसलिए लाए हैं कि सारी फैमिली जर्नी में है, हाँ। तो उनको ज़रा दिखाएंगे वीडियो बना के। या तो वो कहता जी हमारा कसूर इसमें क्या है, हमें कुछ लगाओ। अच्छा मैंने उसको 12-20 स्मारक याद है मुझे, वो दिए मैंने। अच्छा तो फिर जैसे ही हम वो यहाँ से जनाजा वसूल करते हैं, वहाँ पहुँचे तो एक बुज़ुर्ग थे, वो ट्राली पे लेके आए बाहर। ठीक है मैंने उनको कुछ देना चाहा तो या मेरे भाई ने, तो उन्होंने कहा नहीं मैं जनाजे अच्छा। ये मैयत के पैसे नहीं देता, मैंने भी मरना है। अच्छा इस बात का मकसद ये आप लोगों को बताने का है कि आज मुझे वो दोनों लोग याद रहे, बिल्कुल ठीक मगर खुदा गवाह है कि आज भी वो बुजुर्ग मेरी दुआओं में है। बिल्कुल सही मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं नमाज में कई दफ़ा उनके लिए भी दुआ करता हूँ, और मुझे जब भी याद आते हैं मैं यही करता हूँ कि अगर वो ज़ारा वो ये इस बात को कि 26 साल हो गए, उसको 60 साल के थे, कि अगर वो ज़िंदा है तो अल्लाह ताला उन पर अपने फजल फरमाए, अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह था। आमीन। जो भी कोई बंदा नेकी करता हाँ है जी। वो भी याद रहता है, जो बुरा सलूक करता है वो भी याद रहता है, बिल्कुल लेकिन सही। नेक आदमी के लिए आपके दिल से दुआ निकलती है। बिल्कुल ऐसे ही। तो इफ्तिखार साहब का जब ये मैंने कल माहौल देखा तो मैं बड़ा मुतासिर हुआ इससे या कि यार इतना हर दिल अजीज बंदा। बिल्कुल सही बात और फिर जो मैं चीज़ बतानी चाहता हूँ कि ये सुबह निकले जो हमें पता चला, अच्छा। तो मुख्तलिफ जगह पे ख़रीदारी करने के बाद कहीं पे रास्ते में भी कुछ हो सकता था, बिल्कुल सही है कुछ तबीयत ख़राब हो सकती थी, बिल्कुल। हॉस्पिटल जा सकते थे, सब कुछ हो सकता था। बिल्कुल सही लेकिन अल्लाह ताला का ख़ास फजल ये हुआ कि ये आए घर आके, इन्होंने खाना वगैरह था बनाया क्योंकि मेहमान आए हुए थे, ठीक। और वज़ू किया, अच्छा वज़ू होके वो इधर जानबस पे आए, अच्छा। और यहाँ पे उनकी वफात हुई। तो आप बहुत देख बड़ी- लें कितने लोगों को इस तरह की मौत नसीब बिल्कुल होती है, सही। अपने इर्द गिर्द नजर डाल के नीयत देखिए। इंसान की जो की है उस नीयत को तो खूबियाँ तो उनमें बेशुमार थी, जिस तरह लोग भी बता रहे हैं। तो मुझे जब भी कहना आप आते नहीं हैं, आप रहते नहीं हैं, सही है तो आप फ्रैंकफर्ट जब भी आए इधर हमारे पास आए, सही। तो खूबियाँ इतनी है कि अब हाँ, बंदा वो बयान करने बयान लगे तो वो तो बहुत टाइम लेकिन एक जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है ना, उसकी कदर और उसकी जो अहमियत का अंदाज़ा उस वक्त होता है कि यार उसमें कितनी खूबियाँ थी। बिल्कुल। वो सामने जब होता है उसकी वो होती नहीं है कि बंदा एक रूटीन समझता है कि यार इसने फिर सुबह मिलना है कुछ, लेकिन जब ना होने का एहसास पैदा होता है फिर पता लगता है कि इस बंदे में तो ये खूबी थी। बिल्कुल। फिर वो तो मैं यही बता रहा हूँ कि देखिए इंसान कमज़ोर है, कुछ भी है, मगर उसके बावजूद मैंने जो यहाँ पे लोगों के तासरा, कोई कहता है यार मेरे घर का काम था, या। उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अच्छा, जो जमात के लोग हमारे यहाँ रहते हैं, हाँ जी। उन्होंने कहा जनाब हमने जब भी उनको देखा, ज़ियाफ़त है, तबलीग है, कहीं पे भी, मुझे मरबियान के भी सुबह फ़ोन आए। अच्छा। वो कहते उम्र तो कुछ भी नहीं थी, मगर ये तो हैम्बर्ग में रहते थे, उस वक्त भी बड़े एक्टिव थे, बढ़ चढ़कर इस बिल्कुल कामों में इस- ऐसे कामों में हिस्सा लिया। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, मेहमान नवाजी बड़ी ये नुकता मैं कह बिल्कुल ये सही बात है। बड़ी ज़रूरी चीज़ थी। मैं पिछले दफ़ा जब देखो जो आप वाकया बता रहे थे कि दोस्त दूसरे काम के लिए आए और उनको, ये आम आदमी में कहाँ होता है। नहीं, वो मेरे काम के लिए हाँ, आए। बिल्कुल। अच्छा, उनके लिए जनाब ग्रिल ये वो पूरा प्रोग्राम करते हैं यार, वो हम इकट्ठे बैठ के खाना खाएंगे। हमने फिर कुछ अपने प्रोग्रामों में 9 टीवी इंटरनेशनल वीडियो भी हाँ अपलोड किया। मैं देखी हुई तो हूँ। ये अल्लाह ताला का खास फजल था कि बेशुमार खूबियों के मालिक थे। और फिर जो एक अल्लाह ताला अपने नेक बंदों पर फजल फरमाता जी। है, उसमें ये सबसे बड़ा फजल है कि कोई मुताजी नहीं। देखे बंदा
कुछ और भी बीमारी भी आ सकती है, बिल्कुल चारपाई पे पड़ सकता है, मसाज हो सकता है। अल्लाह ताला ने उनके ऊपर फजल भी फरमाए और किसी के लिए मताज भी नहीं कि कोई किसी की तरफ देखे क्योंकि आगे मेरी खिदमत करे। ये आपकी सारी जो बातें हैं ना, इनके साथ एक चीज़ जो रिज़ल्ट मैंने जो अपने तो देखें, इस वक्त जो हम खड़े हैं ना, इस वक्त ये जो आप बाहर का मंजर साथ साथ देख रहे हैं और ये जो खुली जगह है, ये इफ्तिखार साहब ने तकरीबन 1 साल पहले इस गाल में 1.5 शिफ्ट हुए हैं। और आपको पता होगा कि इधर लोग 30-30 साल के आए हुए हैं, उनको तौफीक नहीं हुई कि माशाल्लाह इतने बड़े घर के अंदर जो आप देखें वहाँ से शुरू हो रहा है और मेन सड़क के ऊपर है और जहाँ बैठ के बात, ये अल्लाह ताला की देन होती है। लेकिन इसमें एक सबक और भी है कि खुदा ताला को कभी भूलना नहीं चाहिए। अल्लाह के आगे इंसान ने हाज़िर होना है। जितनी भी इंसान तरक्की कर ले उसने एक दिन जाना है। हम लोग जो पाकिस्तानी हैं ख़ास तौर पे, हमारे दिलों में थोड़ी सी तरक्की हुई नहीं, गरीब रिश्तेदार मिलने वाले, उनके लिए हमारी नज़रें। रिश्तेदारों की बात से मुझे याद आया कि एक और भी खूबी उनमें थी कि वो चाहते कि हम सब रिश्तेदार मिल के रहे। अच्छा, उन्होंने दावत करनी, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, अच्छा। सब लोगों को इधर रिश्तेदारों को इकट्ठा करना। और एक तो होता ना कि कई जगह पे मैं देखा मेहमान देख के तो लोग चेहरे पे एग्जैक्टली आ जाती है। एग्जैक्टली उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी कि हम इकट्ठे बैठे हैं खाना खाने लगे। और मुझे आप अगर सही पूछे, मुझे कई दफ़ा शर्मिंदगी होनी कि ये इतना कर रहे हैं। तो फिर मेरा ख्याल है मुबारक साहब, ये ना मेरा ये ज़ाती ख्याल है, ये अल्लाह की एक देन है बंदे पे। हर बंदा बाद बंदा बनावटी कर भी लेना, पता चलता है कि यार ये बनावट, लेकिन एक होता है कुदरती, एक बंदे में ये पाया जाता है कि मेहमान नवाज है, उसके चेहरे पे सलवट नहीं। फिर ये है कि मैं इस नहज से देखता हूँ ज़ाती तौर पे, जो बंदा जमात के लिए टाइम देता है बेलौस, ज़ियाफ़त में, तबलीग में और कौन कौन से शोबे मौजूद, उसके लिए इंसान पास कोई लफाज नहीं है उसकी तारीफ़ के लिए, क्योंकि वो सारा खुदा की नहीं है ना, दीन खुदा के दीन की। तो ये उनके पास बहुत बड़ी खूबी थी। अगर आप चंद अल्फाज आप भी बता दें, अगर कोई लफ्ज़ याद हो, कोई बातें तो आप बताएं ज़रूर। पहली बात तो ये है कि जब हमें कल टेलीफोन पे पता चला कि इफ्तिखार साहब अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, तो हमें तो यकीन ही नहीं आया। तो अल्लाह की मर्ज़ी थी, बस अल्लाह का रज़ा थी अल्लाह की। बिल्कुल सही बात। तो जितनी खूबियाँ जो मुबारक साहब ने आपके सामने बयान की हैं जी, तो मैं क्या बयान करूँ इससे आगे। सही है। लेकिन एक बात मैं शेयर करनी चाहता हूँ जी। कि जो मुबारक साहब ने ये कहा है कि वो एक फैमिली को सबको इकट्ठा देखना चाहते थे और हमेशा वो इस बात को सोचते थे कि सब इकट्ठे होकर तो जब भी वो नौजवान आते थे मेरे पास अपने बच्चों के साथ, तो वो हमेशा यही कहते थे, अंकल आप हमारे पास आ जाएं। अच्छा। मैं आपके लिए मकान का बंदोबस्त कर देता हूँ। अच्छा। मैं अपने घर में आपको कमरा दे देता हूँ। अच्छा। आप हमारे पास आके रहे, मैं आपकी खिदमत करूँगा। अच्छा। मुझे ऐसे बाप की तरह उन्होंने दर्जा दिया हुआ था। अच्छा। बहुत ही प्यार करते थे, बहुत ही इनके अंदर मोहब्बत थी। और जब हम यहाँ आते थे, मैं अपने वाइफ के साथ यहाँ आता था बच्चों के साथ, तो ये इतनी मेहमान नवाजी करते थे, मैं खुद शर्मिंदा हो जाता था जितनी वो मेहमान नवाजी करते थे। तो बस ये अल्लाह ताला उनके क्या कहते हैं मुकाम बुलंद, दर्जात बुलंद करे, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। बिल्कुल। आमीन। हम जो अभी इस दुनिया की बहारें देख रहे हैं ना, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि जो अच्छा काम करते हैं इस दुनिया से, उनके लिए दुआ करें। और फिर ये है कि इस दुनिया में जितना टाइम है, अल्लाह को ना भूलते हुए अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से, तल्लुक़दार, अगर कोई दिल में कोई किसी किस्म की नाराज़गी है उसको फौरी ख़त्म कर दें। क्योंकि जिस एक जगह पे ज़िक्र आता है कि जो अल्लाह के बंदे को माफ़ नहीं करता ना, अल्लाह उसको कभी माफ़ नहीं करता। तो ये चीज़ें ऐसे मौक़ों पे ख़ास तौर पे इंसान को ज़हन में रखना चाहिए कि एक दिन जाना है, तो किस मुंह से जाएंगे खुदा के हम फ़लाँ के साथ भी दिल में रखी हुई थी और फ़लाँ के साथ भी नाराज़गी, तो ये चीज़ें जो है ना ख़त्म करके जाना चाहिए। आपका शुक्रिया जी। इफ्तिखार साहब जो थे ना जी, ये बस इनमें ये एक खूबी और भी थी कि ये हर किसी के दुख दर्द में शरीक होते थे। ये बहुत बड़ी एक तो मुझे याद है कि कुछ अर्सा पहले मेरी वाइफ जो गिर गई तो उनके बाजू पे चोट लग गई। अच्छा। इनको पता चला तो यकीन करिए दूसरे दिन अच्छा। तमाम बच्चों को लेके मेरे पास आ गए। अच्छा। और
1 हफ्ते का राशन लेके और अच्छा। पका के अच्छा। सारा कुछ वो मेरे पास लेके आए वहाँ देखे ना। पिरामिड में। फिर उन्होंने किचन में अंकल आंटी आप एक तरफ हो जाए, मैं सारा इंतजाम करूँगा। उन्होंने अकेले सारे खाने पकाए, अच्छा। सारे पका के वहाँ दे के हमें फिर आए। फिर कहने लगे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता। इतने वो हम दर्द थे और दुख दर्द में शरीक होते थे। अल्लाह ताला उनको गरीब के रहमत करे। आमीन आमीन। क्योंकि ये बातें जो हमने की हैं इनका मकसद और गरज ये है कि जब इंसान सुनता है ऑटोमेटिकली दुआ का एक तहरीक पैदा होती है दिल में। तो ये इस तरह हमें इस चीज़ को रवाज देना चाहिए कि जो भी दोस्त जो भी अल्लाह को हमारे तरफ अतराफ़ में करीब में फैमिली में, तो उनकी जो अच्छी बातें हैं उनका ज़रूर एक दूसरे के साथ। जी मुबारक अच्छा, ये साहब। मैं बता दूँ कि ये अफजल साहब का भी थोड़ा सा कि जब चैनल शुरू किया तो बड़ा तावन किया अफजल साहब ने, रबुआ की वीडियोस बना के भेजते थे, तो मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपका जनाब बड़ा तावन है शुरू में हमारे साथ। बस जी। बाद में वो कहते जब काम चल जाए लोग भूल जाते, वो हमारे साथ नहीं इसमें तो- थोड़ी सी मैं इसमें बाद में जाऊँ। हमारे साथ ये नहीं हुआ, बल्कि हमारे साथ ये हुआ कि जब काम चल गया तो मसरूफियत बढ़ गई मसरूफियत में और उसमें हमारा राब्ता फिर भी रहा। हम एक दूसरे से बातें फ़ोन पे ये वो बात बड़ी टेक्निकल आज बातें याद देर बाद आपसे मुलाकात हुई, क्योंकि जिस तरह आज का कोरोना की वजह बिल्कुल से सही। मुलाकातें कम ही है। बिल्कुल सही लेकिन बात। बड़ा अच्छा लगा। इसी वाले से अगर आप थोड़ा सा अगर दोस्तों की इल्म में इजाफे के लिए बता दें कि आपने फर्स्ट टाइम आपने कौन से सन में शुरू किया था इसको? 2 साल हो गए थे। 9 ब्रदर को स्टार्ट लिया हाँ जी। और 2 साल में माशाल्लाह आपने अब अभी 7 मिलियन लोग जो है टच कर चुके हैं, टच कर जो चुके देख- हैं। देख- आपको मैं देख रहा था कि सब्सक्राइबर तकरीबन 17,000 हाँ जी, के लेकिन नज़दीक देखने वाले जो। बहुत- उसमें मैं बता देता हूँ जी ये वैसे मैं किसी चैनल पे इंटरव्यू नहीं आई तक मैं इसीलिए हाँ ज़रूर ज़रूर कि हमारे जो लोग हैं उनको सब्सक्राइब भी नहीं करना, बिल्कुल ठीक है, तो लेकर देख रहे हैं, हमें यही खुशी होती थी कि देख बिल्कुल रहे हैं। सही है उनका। तो आज अल्लाह का फजल है, आप देखते हैं कि हर तरफ हमारा चैनल हर बिल्कुल। तरह और प्रोग्राम भी काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। बड़े मुबारक बड़े साहब, लोग आ नेक रहे हैं। नियति के साथ जो काम किया जाता है ना उसमें बरकत ज़रूर पड़ती तो है। ये तरक्की की एक वजह बता देते हैं आज आपको कि कोई चैनल बनाता तो उसकी सोच होती है कि पैसे किधर से Exactly, आएंगे। हमारी ये सोच नहीं है। सही है, ठीक है, आज भी लोग मुझे पूछते हैं तो मैं कहता है जनाब आज तक अभी ये सोच नहीं है। ठीक है, तो जब तक आप देखिए हर चीज़ पे ये नहीं होता कि पैसे ही आए ना। बिल्कुल सही है, आज लोगों को फायदा पहुंच रहा है। बिल्कुल। आज दुआएं देखें, दुआएं हैं, घरों में तबलीग बैठे है। लोग बेचारे तंग हैं, बिल्कुल। तो वो तो अगर पैसा देखे तो मैं बता दूं कि जब तक आप जिस तरह हम लिमिट में प्रोग्राम करते हैं अखलाकियात का ख्याल रखते हैं, बिल्कुल सही है। इसमें पैसे नहीं है, इज्जत है। ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक तो बात। अगर आप कोई दूसरे प्रोग्राम शुरू कर दे तो उसमें पैसा आएगा। आप देखें ना मगर पाकिस्तान हमारा वो की अखलाक नहीं, हमने ये सीखा नहीं। बिल्कुल सही बात है, तो बिल्कुल दूसरा जमात अहमदिया से तल्लुक़ है, हमारी तरबियत ऐसी है जी। कि हमें अपने प्रोग्राम जो है बेहतर से बेहतर करने पड़ते हैं ताकि लोग हमारी हालत देख के हमारे से पूछे कि आप कौन लोग। बिल्कुल खुद पूछेंगे, तो सही बात है। ये चैनल बनाने का ये मकसद था। माशाल्लाह आपने उसको काफ़ी तरक्की दे ली है, जर्मनी में भी और बाद ममालिक से लोग जो 50% हैं। लोग जर्मनी देखते हैं हमारा चैनल। अच्छा अच्छा, सबसे ज़्यादा जर्मनी में ज़्यादा पसंद किया। कल यहाँ पे बेशुमार लोग आए, सब हमारे चैनल को देखते बड़े खुश हुए मिलके। फिर बड़ी खुशी होती है जब लोग मिलते हैं हमारे चैनल की तारीफ बिल्कुल करते हैं। सही बात है। तो मुझे कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना मकबूल होगा हमारा चैनल। बस ये वही कहते हैं कि नीयत, अगर नीयत बंदे की अच्छी हो तो फिर खुदा बरकत डाल देता है। और भी बड़े चैनल हैं जो बने हैं, लेकिन बात फिर वही है कि जो हमारा तहजीब जो अखलाक का एक दायरा है, अगर हम उसके अंदर रहेंगे तो वो मिलियंस वाले तो चक्कर नहीं है कि आपके सब्सक्राइबर, लेकिन वो जो देख रहे हैं वो आपको दुआ ज़रूर देते हैं कि भाई हमें बैठे बिठाए एक खबर मिल रही है, अच्छी बातों का पता चल रहा है। चैनल शुरू किया तो पाकिस्तान से मुझे उन लोगों ने देखा, थोड़ा सा चला हमारा चैनल, तो एक का मैसेज आ गया कि मैं तबला बड़ा अच्छा बजाता हूँ। अच्छा। तो मैंने कहा क्या तुम गलत जगह पे आ रहे हो? सही है, सही है। फैसलाबाद था या लाहौर था, मुझे अच्छा याद नहीं। अच्छा अच्छा, कहता क्या मतलब? मैं कहा नहीं ये तबले वाला नहीं है काम, ये तुम बजाते- तबलीग वाला काम हाँ, ये तबलीग वाला, तो तुम तबला जहाँ बजा रहे हो वहाँ बजाते रहो। सही तो है। बड़ा हैरान कि मैं आपको फ्री सर्विस दे रहा या, या, हूँ। मैं कहा नहीं ये हमारे काम की सर्विस नहीं है। सही तो सही, ये वैसे आपको बात बता दी है। ठीक है, तो बिल्कुल आपका सही। सर शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी आपका, जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। बहुत अच्छा।